कॉम्पैक्शन, दैट इज कॉम्पैक्शन। मतलब क्या होता है कॉम्पैक्शन में, क्या होता है, देखो हियर इट इज, यू हैव सीन दिस डायग्राम। ओके, तो ये मतलब ये सॉइल पार्टिकल्स, लूज सॉइल है। Okay, here it is your loose soil and here it is your compacted soil. So what is the difference between this? Now in a loose soil you find that there is low load support or there is a void space. Okay, here is some air is present in the soil sample, but after compaction that all particles get arranged in a systematic manner. Okay, arrange in a systematic manner, so that is nothing but the compaction. Okay, कॉम्पैक्ट करते, देखो कोई भी रोड अगर बनाना हो, रोड बनाना हो या कोई स्ट्रक्चर आपको बनाना हो, फाउंडेशन बिल्ड करना हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है। ओके, तो कॉम्पैक्शन एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो हियर the compaction is by which the soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to decrease porosity, that is voids ratio of the soil and thus increase the dry density. क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कॉम्पैक्शन का, मतलब जो भी void स्पेस है और जो भी पोरोसिटी है सॉइल पार्टिकल में, उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। वी आर गोइंग टू डिक्रीज बाय द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल बाय artificial, by mechanical means. Okay, by mechanical means, okay, of the soil, and that artificial rearrangement of soil particles where takes place in case of compaction. compaction में क्या होता है, artificially rearrange करते हैं और पैक करते हैं हम soil particles को, that closer come in contact and decreases the porosity of the soil and thus increases the dry density. So this is what the compaction. Now the compaction process may be accomplished by rolling, tamping and vibration. ओके, कॉम्पैक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से कंप्लीट की जाती है, मे बी रोलिंग करके हम उसको मतलब कंटिन्यूअस रोलिंग एक्शन, मतलब जो भी सॉइल सरफेस होगा उस पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली रोलिंग एक्शन कर, रोलर्स घुमा के उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे और सम टैम्परिंग करेंगे। टैम्पिंग करना मतलब हैमरिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक हैमर होता है, ये हैमर क्या करेंगे हम, ये हैमर की इस तरह से हैमरिंग करके हम क्या करेंगे, वहां पे कॉम्पैक्शन बढ़ा देंगे सॉइल का, ये एक मेथड होती है। और वाइब्रेशन, और विद द हेल्प ऑफ सम वाइब्रेटर्स वी कैन आल्सो गो फॉर compacting that soil. So compaction is somewhat different from the consolidation. Okay, consolidation is different and compaction is different. Okay, consolidate में क्या करते हैं हम सिर्फ उसमें, कंसोलिडेशन में क्या करते हैं हम सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स जो वो रीअरेंज होते हैं किस तरह से, कि फॉर एग्जांपल सपोज यू कलेक्ट एक पॉट लो, एक कंटेनर लो और उसमें क्ले सॉइल भरो, ठीक है, उसमें क्ले सॉइल भरो। ओके, इफ यू वांट टू सेटल, कंसोलिडेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स सेटल किए जाते हैं। Okay, only settlement of the particle is takes place in consolidation, and in case of compaction we have to remove voids or the porosity of the soil. Okay, porosity of the soil we have to reduce in case of compaction. So consolidation is a gradual process of volume reduction under the sustained loading. Compaction refers to the more or less rapid conduction, rapid reduction mainly in air voids under the loading support. मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन में क्या होता है, वॉल्यूम रिडक्शन होता है विदाउट लोडिंग। ओके, और विदाउट लोडिंग में हम क्या कर सकते हैं, उसमें कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, मतलब कंसोलिडेट कर सकते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग सम लोड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, सो दैट दे रिड्यूसेस द एयर वॉइस, is mainly reduced, rapid reduction in the air void. So this is what your consolidation. Okay, that is compaction. Now in 1933 the Proctor showed that there exists a definite relationship between the soil water content and degree of dry density to which a soil might be compacted, and that for the specific amount of compaction energy applied on the soil surface was water content termed as optimum water content at which the particular soil
अटेन अ मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, मतलब क्या एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट में सॉइल एक अटेन मैक्सिमम डेंसिटी, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट में सॉइल क्या करते हैं, डेंसिटी, दैट इज मैक्सिमम डेंसिटी अटेन करती है। तो विच व्हाट इज दैट डेंसिटी एंड हाउ दैट डेंसिटी इज डिटरमाइंड, दैट इज शोन बाय द प्रॉक्टर इन द 1933। ओके, तो ये हो गया। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्पैक्शन, ओके, व्हाई इट इज रिक्वायरमेंट फॉर सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल कॉम्पैक्ट क्यों की जाती है, तो उसका मेजर रीजन होता है कि सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज दी सॉइल टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, उसमें स्टेबिलिटी होती बढ़ जाती है सॉइल में, परमिएबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और इरोजन डैमेज, इरोजन कम हो जाता है, टू रिड्यूस इरोजन डैमेज, मतलब इरोजन से जो भी डैमेज होने वाला है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये मेन 4 रिक्वायरमेंट्स है सॉइल कॉम्पैक्शन की, कि जिसकी वजह से सपोज सिंपल है, इफ द सॉइल इज लूज, ओके, सॉइल अगर लूज है तो उसमें वॉइड्स ज्यादा है, if the soil is loose है इसमें void space कैसा है, ज्यादा। if the soil is compact, so there is no void space, there is no void space, so that soil particles get compacted or held by each of the by the action of cohesion forces। okay, cohesion forces से वो soil क्या करेगी, उसमें वो होल्ड करेगी, होल्ड करके रखेगी सॉइल पार्टिकल्स को एक दूसरे को। ओके, उसके क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है सॉइल की। अगर सॉइल की स्टेबिलिटी, लूज सॉइल में स्टेबिलिटी ऑब्वियसली लेस होती है एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट सॉइल। ओके, तो इसमें स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। परमिएबिलिटी मतलब जो भी परमिएबिलिटी होती है सॉइल की, मतलब जितना भी वाटर उसमें से परमिट होता है। ओके, और वो जो परमिएबिलिटी मतलब उसकी एबिलिटी है कोई लिक्विड को परमिट करने की, वो रिड्यूस हो जाती है और इरोजन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे व्हाट द सॉइल रिक्वायरमेंट ऑफ द soil compactions। Now here are the factors that affecting on the compaction। So first is compaction energy affect करती है, moisture content affect करता है, soil type is also affecting, thickness layer एक तरह से affect करती है, contact pressure affect करता है, number of roller press कितने हुए, passes कितने हुए वो भी होता है, and speed of the rolling, वो ये सारी चीजें क्या होती है, इस पे अफेक्ट करती है, इस पे कॉम्पैक्शन पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दिस वन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ये दो चीजें, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। And now compaction is what is the process when the impact load is applied to solid which expel air from the voids। इसमें क्या होता है, impact load हम अप्लाइड करते हैं। ठीक है, और कंसोलिडेशन में क्या होता है, देयर इज ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड वेरी for a very long period of time which lead to explosion of water from the voids। okay, which leads to explosion from the water from the voids। क्या होता है कि ग्रेजुअल, हम कंसोलिडेशन में हम लोड अप्लाई करते हैं बट वो ग्रेजुअल होता है। क्या होता है, ग्रेजुअल होता है एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एंड दैट लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। क्या होता है, वॉइड्स में से उसको क्या होता है, वॉइड्स में वॉइड्स निकल, वाटर वॉइड्स निकल जाते हैं उसमें से बाय ग्रेजुअल अप्लाइंग द लोड। कॉम्पैक्शन इज डन टू अचीव मैक्स ड्राई डेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्शन लाइक रोड। ओके, कॉम्पैक्शन क्यों अचीव किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। देखो जब भी कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें हम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अर्थ मटेरियल पुट करके, ओके, ज्यादा से ज्यादा अर्थ मटेरियल पुट करके वो क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, उस पर रेगुलरली रोलर्स रोल किए जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो टू अचीव द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ओके, to achieve the maximum dry density। Now in case of compaction it increases the strength of soil as effective stress increases due to reduction of pore pressure। क्या होता है इसमें, क्या होता है, here it increases the strength of the soil। okay, ये क्या होता है, ये कंसोलिडेशन सॉइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ पोर प्रेशर। मतलब जैसे ही पोर प्रेशर होगा वो रिड्यूस होने के बाद उसमें क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वो रिड्यूस करता है, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ तो उसके वजह से क्या होगा, पोर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया कंसोलिडेशन, मतलब ये ग्रेजुअल लोड अप्लाई करने के बाद जो भी पोर स्पेस होगी दैट जो भी स्ट्रेस रिड्यूस हो, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा वो रिड्यूस करेगा पोर प्रेशर को। तो ये हो गया तुम्हारा कंसोलिडेशन में। नाउ डायनामिक लोड बाय रैपिड मैकेनिकल
Mechanical method like tamping, rolling, vibration are applied for some interval in a solid compaction. ठीक है, कुछ interval के लिए हम क्या कर सकते हैं, solid compaction में that dynamic loads were loaded and static and sustained loading is applied for a long interval. मतलब हमें static और sustained load उस पे apply करना पड़ता है soil पे for a long term. और यहाँ पे क्या होता है, rapid और dynamic loading करके हम उसमें लोडिंग करके हम उस फॉर अ स्मॉल इंटरवल हम उसका कॉम्पैक्शन रिमूव कर सकते हैं. ओके, सॉइल वॉल्यूम इज रिड्यूसेस टू रिमूविंग एयर वॉइड्स फ्रॉम द सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल. ओके, इसमें से वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. बट सॉइल वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय स्क्वीजिंग आउट पोर वाटर फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉइल. ओके, मतलब इसमें भी वॉल्यूम रिड्यूस होता है, बट स्क्वीजिंग करते हैं हम, स्क्वीजिंग आउट द पोर्स वॉल्यूम pour of water from the saturated soil में से हम क्या करते हैं, वाटर क्या करेंगे, pour करेंगे, वाटर निकाल लेंगे. and it is mainly used for sandy soil. compaction sandy soil के लिए यूज किया जाता है और it is mainly used for compaction. ठीक है, compaction क्या होता है, only clay soil के लिए यूज किया जाता है, mainly used for clay soil. मतलब clay soil में आपको compaction कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और सैंडी सॉइल में आपको कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है, that is good and that is useful for the different purposes. Okay, and it also produces a high unit weight of soils and improve its properties. Okay, ये क्या करता है, high unit weight में soil की properties improve कर देता है compaction. and in natural process ये जो ये जो natural process है consolidation की, where soil below building compacted by the transport load to the soil through फाउंडेशन सिस्टम. इसमें क्या होता है, लोड ट्रांसफर किए जाते हैं बाय यूजिंग द फाउंडेशन सिस्टम. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन दी कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन. क्या डिफरेंस है इसमें, कंसोलिडेशन में हम लोड एक्ट करते हैं, सॉरी कॉम्पैक्शन में हम लोड एक्ट करते हैं, कंसोलिडेशन में हम ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉइड स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है. कॉम्पैक्शन अचीव करते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, कॉम्पैक्शन यूज करके हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करते हैं. ओके, फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस लाइक रोड और etc. एंड हियर द स्ट्रेंथ इज रिड्यूसेस. ओके, इट इंक्रीजेस, इस मतलब इसमें क्या होता है, स्ट्रेस इंड्यूस होके, स्ट्रेस इंक्रीज होके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सॉइल की. ओके, डायनामिक लोड अप्लाई करके हम कंपैक्शन में जो भी कॉम्पैक्शन हमें चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम के लिए. पर यहाँ पे स्टैटिक और सस्टेनिंग लोड हमें ऐड करने पड़ते हैं फॉर लॉन्ग इंटरवल फॉर अटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल और टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. सॉइल वॉल्यूम दोनों में रिड्यूस होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, सॉइल वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो यहाँ पे एयर वाइड रिमूव किया जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉइल. ओके, पोर मतलब जो भी पोर वाटर उसमें से पोर निकाल के जाता है. दैट इज मेनली यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल एंड ये भी जनरली यूज की जाती है क्ले सॉइल के लिए. तो यूनिट इसमें क्या होता है, high unit weight of soil is improve its properties, and here it is the natural process and the all loads below the building foundations were compacted by the transport load of the soil through the foundation system. तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस. तो इसके बाद देखेंगे these tests are based on the following methods of compaction. ओके, जो डायनामिक टेस्ट, डायनामिक इम्पैक्ट, डायनामिक और इम्पैक्ट होता है, देन नीडिंग होती है, स्टैटिक एंड वाइब्रेशन. ये चार टेस्ट किए जाते हैं जब भी कोई भी कॉम्पैक्शन हमें करना हो. तो फर्स्ट इज कॉम्पैक्शन टेस्ट इज यूज इज अ लाइब्रेरी एंड टू डिटरमाइन वाटर डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ द सॉइल. क्या है, कॉम्पैक्शन की जो टेस्ट होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड स्टेट, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड स्टेट्स test and that are mostly laboratory based. Okay, that are mostly laboratory based. So first is standard and modified factor test होता है, हार्डवर्ड मिनिएचर कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं, अबाउट कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर की टेस्ट यूज करके हम इसका टेस्ट करते हैं. सो द मेन एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू अराइव एट एन स्टैंडर्ड एट विच मे serve as a guide on the basis of the compaction for the field compaction. ठीक है, ये गाइड की तरह गाइड करते हैं हमें कि कौन मतलब दैट इज यूज हाउ टू कॉम्पैक्ट द सॉइल विद द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो उसके लिए एक एपरेट होता है, एपरेटस यूज, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एपरेटस यूज करते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एपरेटर यूज करते हैं. एंड द टेस्ट वाज गिवन इन 93 बाय आर.आर. प्रॉक्टर
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ फिल्ड डैम। ओके, मतलब अर्दन एम्बैकमेंट जो होता है, अर्दन एम्बैकमेंट इस तरह से जो एम्बैकमेंट होता है, उसके लिए इन्होंने एक मेथड दी, दैट इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, बिकॉज इट रिड्यूसेस द impact of the reduces the void pressure by applying continuous rolling action or continuous loads on a soil. So here the test equipment consists of cylindrical metal mold। इसमें क्या होता है, एक cylindrical metal mold होता है, उसका internal diameter 10.15 सेंटीमीटर होता है, अराउंड 4 इंच होता है, और उसका इंटरनल इफेक्टिव डायमीटर, इंटरनल इफेक्टिव हाइट होती है उसकी, इट इज अराउंड 4.6 ओके इंचेस, सो अराउंड 11.7 सेंटीमीटर होता है, एंड कैपेसिटी उसकी होती है 945 लीटर्स। ओके, 945 लीटर्स इसकी क्या होती है कैपेसिटी होती है, ये दैट इज दी हियर। एंड डिटैचेबल बेस होता है, प्लेट बेस प्लेट उसमें होती है। कोलार होता है 2 इंच का, अराउंड 5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। इफेक्टिव इन इफेक्टिव हाइट, ओके सॉरी 5 सेंटीमीटर इज इफेक्टिव हाइट, एंड दी रैमर यूज किया जाता है। ओके, रैमर ऑफ 2.5 kg, मतलब 2.5 किलो का रैमर यूज करते हैं। मास फिलिंग थ्रू द हाइट ऑफ 12 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें क्या होती है इसमें दिखाई देती है। तो दिस इज द लेआउट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। द टेस्ट consists in compacting the soil at various water content in a mold, okay, in a 3 equal layers। इसमें क्या होता है, 3 equal layers में क्या होता है, वेरियस मॉइस्चर कंटेंट में हम क्या करते हैं, मोल्ड्स में सॉइल भरते, फिल करते हैं, एंड ईच लेयर being given 25 बाउल्स ऑफ 5.5, मतलब 2.5 के लेके 25 बाउल्स हम क्या करते हैं उसमें, बाउल्स करते हैं, मतलब हैमरिंग करते हैं, ठीक है। एंड ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर और 12 इंचेस दैट इज 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इसको इसमें क्या होता है, हैमरिंग एक्शन की जाती है अराउंड 30 सेंटीमीटर हाइट से। ओके, ये हैमर है। ओके, हैमर क्या करेगा, इस तरह से 30 सेंटीमीटर हाइट से हम इसको 25 बार इम्पैक्ट करेंगे और बाउल्स करेंगे, ठीक है, 25 टाइम्स उसको बाउल करेंगे। एंड द कंपैरेटिव एनर्जी यूज फॉर दिस टेस्ट of 6065 kg centimeter per 1000 ml of the soil, around that is 595 kilojoule per meter। okay, the figure shows that the compaction, ये जो compaction test का है, एक्चुअली इसका लेआउट है। कॉम्पैक्शन टेस्ट में क्या होता है, कोलार्स होती है, ठीक है, 3 लेग्स ब्रॉन्ज होता है, 3 पिंस होती है फ्रॉम कैच ऑफ द फॉर द कोलार, डिटैचेबल बेस होता है, बेस प्लेट होती है जिससे हम डिटैच कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक कॉम्पैक्शन टेस्ट का इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये देखो, ये इसका आउटर डायमीटर, ये इनर डायमीटर होता है, ये दैट इज हियर इट इज योर कोलार। ओके, ये जो होते हैं कोलार्स होते हैं, और ये जो होते हैं स्क्रू होते हैं और लिंक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो कॉम्पैक्शन को होल्ड करते हैं। तो ये उसका हैमर होता है, ठीक है, अराउंड इस क्या होता है, ये हैमर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें सॉइल सैंपल फिल करते हैं। वी हैव टू फिल दी सॉइल सैंपल इन दिस कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स। ये कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल फिल करते हैं, और ये जो हैमर है, विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर वी हैव टू हिट इट एट अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, मतलब 30 सेंटीमीटर की हाइट से हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्पैक्शन के 25 बाउल्स देते हैं, 25 बार उसको इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं और उसका ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये होगा एक्चुअली इसकी प्रोसीजर क्या है, सी द प्रोसीजर फॉर द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। About 3 kg of air dried soil, a pulverized soil passing through a sluice of around 4.75 mm you have to consider and mix thoroughly with the small quantity of water। उसमें क्या करो, छोटी quantity of water मिक्स कर दो। The mixture is covered with the wet cloth। okay, जो भी मिक्सचर होगा उसको wet cloth में कवर करो and left for a maturing time of 5 to 30 minutes to permit the proper absorption of the water। अभी क्या करो, एक सॉइल सैंपल है, उसमें थोड़ा सा सॉइल थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो, उस वो जो मिक्सचर होगा उसको क्या करो, एक वेट क्लॉथ लो, उसको वो उस पर 5 या 30 मिनट्स के लिए आप रख दो, बिकॉज ऑफ टू एब्सॉर्ब दी वाटर, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसमें क्या
वो क्या करेगा, एक प्रॉपर एब्सॉर्प्शन करेगा, वाटर का परमिट करेगा. देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड फॉर फर्स्ट स्टेट डिपेंड अपॉन द प्रोबेबल ऑप्टिमम वाटर कंटेंट फॉर द सॉइल. ओके, मतलब कितनी क्वांटिटी ऐड किया है वाटर में, वो उसमें फर्स्ट डिपेंड अपॉन what is optimum water content of that soil. The initial water content may be taken as 4% for a coarser grain soil and it is 10% for the fine grain soil. Okay, अगर coarser soil है तो हम उसका moisture content लेंगे 4% और the soil is the fine grain soil है, we take it as a 10%. We take it as a 10%. Now the empty mold attached with the base plate with the is weighed without कोलर. जो भी एम्प्टी मोल्ड है उसको अटैच करेंगे और जो बेस प्लेट है उस एम्प्टी मोल्ड है वो अटैच करेंगे बेस प्लेट को वेड विदाउट कोलर. मतलब क्या करेंगे, ये जो एम्प्टी बेस है, ठीक है, सी हियर, हियर द एम्प्टी बेस इज हियर. ओके, हाँ, ये जो एम्प्टी बेस है ये वाला, इसका हम वेट लेंगे विदाउट कोलर्स. ओके, मतलब ये निकाल लो वेट पहले, इनिशियली ये निकाल लो. उसके बाद क्या करेंगे, द मैच्योर सॉइल इज प्लेस्ड इन अ मोल्ड एंड कॉम्पैक्टेड बाय गिविंग अ 25 बाउल्स ऑफ रैमर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. ओके, उसके बाद क्या करो, मोल्ड जो है उसको, मोल्ड को क्या करो, फिक्स करो, मोल्ड को फिक्स करो और उसमें क्या कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्ट कीजिए इस तरह से. देखो, ठीक है, ये रैमर है, ये मोल्ड है, तो इसमें क्या करो, 25 बॉल्स दो इसको इस तरफ से यूनिफॉर्मली. ओके, सब तरफ से ये यूनिफॉर्म होना चाहिए. सिमिलरली before putting the second installment of the soil, first compacted layer is scratched with the help of any sharp edge, and the second and third layer are similarly compacted, each layer being given 25 balls. Okay, जिस तरह से हमने पहली लेयर को बॉल, पहली लेयर में बॉल 25 बॉल्स दिए, उसी तरह सेकंड लेयर में भी बॉल 25 बॉल्स देने, और थर्ड लेयर में भी हमें क्या देना है, 25 बॉल्स उसमें ऐड करने. तो द कोलर इज रिमूव्ड, any excess soil is trimmed off to make it level with the top of the mold. ओके, मतलब क्या करोगे, जो भी सरफेस आप बाउल करने के बाद जो भी सरफेस होगा वो कैसा होना चाहिए, लेवल होना चाहिए. ठीक है, लेवल होना चाहिए. और ईच लेयर में आपको क्या करना है, 35 बॉल, 25 बॉल्स आपको ऐड करना है. उसके बाद देखेंगे the weight of the mold, base plate and the compacted soil is taken. उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मोल्ड है, ओके, बेस प्लेट और जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसका वेट लेंगे और उसको नोट कर लेंगे. A representative sample is taken from the center of the compacted specimen and kept it for water content determination. Okay, अभी क्या करेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा वो कॉम्पैक्टेड सैंपल में से उसका हम क्या अभी निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे. तो वाटर कंटेंट आप ओवन ड्राई मेथड से निकाल सकते हो. ठीक है, तो ओवन ड्राई मेथड से हम उसका वाटर कंटेंट निकालेंगे. एंड बल्क डेंसिटी एंड करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप वाटर कंटेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. ठीक है, वॉल्यूम और उसकी वॉल्यूम यूज करके और मास यूज करके हम क्या करेंगे, उसका ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करेंगे. ओके, तो ये हो गया आपकी प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर स्टेट. ठीक है, तो ये जनरली कॉम्पैक्शन टेस्ट यूज करते हैं. तो फर्स्ट इसमें क्या करो, सॉइल सैंपल लो. ओके, अगर आपने कोर्सर सैंपल लिया है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा 4% मॉइस्चर. if you uses the sandy clay soil or sandy soil, so the moisture content is of 10%, and then do the standard procedure. Now after that you will get these types of readings. Okay, if you want to determine density आपको डिटरमाइन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ मोल्ड प्लस मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल ग्राम में लेना पड़ेगा. ओके, ये सैंपल्स है, डिटर्मिनेशन नंबर है सैंपल्स के, हर एक सैंपल का आप लो ग्राम में, दिस इज ऑल इन ग्राम. उसके बाद मास ऑफ मोल्ड लो, मास ऑफ मोल्ड ले लो. then mass of compacted soil. So how we get the mass of compacted soil, if you subtract this weight of mold into weight of the mold plus compacted soil, you will get this weight of the here, and the bulk density is calculated by using this formula, rho is equal to mass into
वॉल्यूम। ओके, तो आपको इस तरह से बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। बल्क डेंसिटी के बाद आपको ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उसके बाद वाटर कंटेंट निकालने का है। वाटर कंटेंट के लिए क्या होता है, मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, ये करो, मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, फिर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ ड्राई सॉइल, और उसके बाद वाटर कंटेंट निकालना। ठीक है, ये जो प्रोसीजर रिव्यू होती है वो सेम होती है। एंड हियर द कैलकुलेशन, the dry density of the compacted soil is calculated by using this formula, that is rho d is equal to rho upon 1 plus w। ठीक है, rho d upon rho upon 1 plus w। rho क्या होता है, बल्क डेंसिटी होती है। ठीक है, rho क्या होती है, बल्क डेंसिटी। तो इसकी बल्क डेंसिटी यूज करके, और w इज व्हाट, वाटर कंटेंट, w इज व्हाट, वाटर कंटेंट। तो ये होगा तुम्हारा सॉइल स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में। इसमें क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ but a 5-layer paying mold for a 4.5 kg of rammer dropped at a height of 18 inches। मतलब 18 inches around 12 inches मतलब 30 सेंटीमीटर, तो 18 inches around कंसीडर कर लो 45 सेंटीमीटर, मतलब हाइट जो होती है 45 सेंटीमीटर तक आप इसको हाइट करो। सेम प्रोसीजर होती है। अभी क्या होता है, हायर कॉम्पैक्शन इज नीडेड फॉर हेवियर ट्रांसपोर्ट। ओके, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, अगर हेवी ट्रांसपोर्ट आपको करना और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए करना हो तो आप you can go for modified Proctor test। Okay, so now in a modified traction it was developed to give a higher compaction। क्यों डेवलप किया गया, क्योंकि हायर कॉम्पैक्शन मिलना चाहिए। and that this state was standardized by American Association of State Highway Officials। okay, किसने किया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स, known as modified AASHO test। okay, modified SHO test होती है। and in this test the soil is compacted in a standard Proctor mold। okay, soil क्या होती है, एक standard Proctor mold होता है of 945 ml capacity but in a 5 layer being given। okay, इस जब रेगुलर में हम मॉडिफाइड में हमने 3 ही लेयर लिए थे, पर इसमें हमें कितनी लेयर लेनी पड़ती है, 5 लेयर लेनी पड़ती है। being given by 25 bowls of, okay, 25 बाउल्स ऑफ 4.5 kg रैमर, मतलब रैमर का वेट कितना होगा, 4.5 kg, ड्रॉप एट अ हाइट ऑफ 18 इंचेस, अराउंड 45 सेंटीमीटर। ओके, अराउंड 45 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए, हाइट। मतलब हाइट ड्रॉप आप जब करोगे, ये सपोज ये प्रॉक्टर, ये जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर इक्विपमेंट, अगर आप हाइट से ड्रॉप करोगे तो ये हाइट जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज अराउंड 45 सेंटीमीटर। ओके, अराउंड 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, ड्रॉप हाइट ऑफ 4.5 kg, वेट कितना होना चाहिए रैमर का, 4.5 kg। एंड द कंपैरेटिव एनर्जी गिवन टू द सॉइल इन दिस टेस्ट इज अराउंड 27,260 kg सेंटीमीटर पर 100 cubic centimeter of soil। ओके, मतलब 1000 cubic सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। मतलब क्या, अगर 1000 cubic meter soil of cubic meter of soil, volume of soil is need to be tested, so the compaction energy should be around this much। okay, मतलब 27,260 kg centimeter per 1000 cubic centimeter of the soil, this much amount of energy is to be given, okay, in this test। and thus the effect of heavier compaction is to increase the maximum density and decrease the optimum water content। so इसका इफेक्ट क्या होता है, heavier density, heavier compaction का, कि ये क्या करता है, इंक्रीज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, और ऑप्टिमम कंटेंट जो है वो डिक्रीज कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑप्टिमम डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। उसके बाद जोधपुर मिनी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है। उसके बाद होता है जोधपुर मिनी कॉम्पैक्शन टेस्ट। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोल्ड हैविंग इंटरनल डायमीटर 79 mm, 0.8 mm एंड हाइट ऑफ इंटरनल हाइट इज अराउंड 60 mm। ठीक है, मतलब ये डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर 79 mm होता है और हाइट कितनी होती है, 60 mm। एंड द रैमरिंग टूल इज कॉल्ड एज द 2.5 kg DTR कंसिस्टिंग ऑफ 2.5 kg drop weight which freely slide down through the height of 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या होता है, एक रैमर होता है
अराउंड 2.5 DTR का kg DTRH का, तो ये इजीली क्या होता है, स्लाइड होता है अप टू हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। ओके, देन द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड इन 2 इक्वल लेयर्स। इसमें क्या होता है, जिस तरह से मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हमने 3 लेयर यूज किए थे, उसके मॉडिफाइड में हमने 5 ईयर्स यूज किए थे, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 3 यूज किए थे। अभी इसमें क्या करना है, जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर टेस्ट में हम इसको 2 इक्वल लेयर्स में कॉम्पैक्ट करेंगे, एंड ईच लेयर बीइंग गिवन अ 15 बाउल्स। ईच लेयर में बाउल्स कितने दे रहे हैं, 15। ओके, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में हमने दिए 15 और मॉडिफाइड में भी दिए हमने 15 of the remaining tool, and the competitive energy used for the test is around 6,250 kg centimeter per 1000 cubic centimeter। ओके, मतलब एनर्जी कितनी यूज की जाती है इसमें, कॉम्पैक्टिव एनर्जी कितनी यूज की जाती है, अराउंड 6,250 kilogram per centimeter per 1000 cubic meter of the cubic centimeter, and the optimum water content and dry density of the obtained as same is the स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में। जिस तरह से हमने ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम निकालना है, तो जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में यूज किया, उसी तरह से इसका रीडिंग्स लेके आपको मॉइस्चर कंटेंट और स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड in a compaction of the soil. Now there are certain instruments, okay, or field compaction methods are there. With the help of that we can go for field methods or field compaction. So various types of soil can be compacted in the field by 3 methods. Okay, मतलब soil का type based on the soil type or the or various soils that the compaction method is done. So first is rilling होता है, okay, रैमिंग होता है, एंटी वाइब्रेशन होता है। उसके बाद होता है वेरियस कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स। ओके, अभी इसके लिए क्या होता है, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कौन से होता है, रोलर्स यूज करते हैं, रैमर्स यूज करते हैं, वाइब्रेटर्स यूज करते हैं। तो रोलिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, स्मूथ व्हील रोलर्स होता है, न्यूमेटिक टायर व्हील होता है, शिप फिट रोलर होता है, लोरीज होता है, न्यूमेटिक टायर कॉन्ट्रैक्शन प्लांट किए जाते हैं, और ट्रैक लेयरिंग व्हीकल्स होते हैं। ओके, ये हो गए तुम्हारे रोलिंग इक्विपमेंट्स। नाउ सम स्मूथ व्हील रोलर्स। ओके, ये रोलर्स आपने देखे होंगे, तो ये स्मूथ व्हील रोलर्स होते हैं, ये जनरली यूज किए जाते हैं कॉम्पैक्ट के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए। एंड इज अ कन्वेंशनल 3 वेट। ओके, इसमें 3 व्हीलर्स ट्रीवल टाइप रोलर होते हैं, 2 लार्ज एंड स्मूथ फेस स्टील व्हील्स in the rear and 1 smaller smooth face drum in front of the, weighing from the 20 to 150 kilonewton। तो टैंडम रोलर यूज वेइंग अराउंड 10 टू 140 किलो न्यूटन होता है। टैंडम रोलर ये जो होता है टैंडम, ओके, ये है टैंडम रोलर है, तो इसका वे अराउंड 10 टू 140 किलो न्यूटन होता है। एंड 3 एक्सल टैंडम रोलर वेइंग अराउंड 120 टू 180 किलो न्यूटन। मतलब ये जो है इसकी ये जो रोलर है, इसका वेट कितना होता है, 120 टू 1 एंड इट इज किलो न्यूटन होता है। And smooth wheel roller are usually self-propelled and are equipped with the clutch type reverse gearing so that they can be operated back or forth without turning। ठीक है, मतलब ये आगे पीछे जाके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गए तुम्हारे वर्ड स्मूथ व्हील रोलर्स हो गए। न्यूमेटिक रोलर्स हो गए, इस तरह से भी देखो एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नहीं देखने को मिलती, पर फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं। दीज आर न्यूमेटिक टाइप रोलर्स एंड दीज आर अ रेंज ऑफ डिफरेंट साइज। ओके, the smaller wobbler wheel roller type, and they are vary with heavy roller। Okay, common form of pneumatic roller consists of box platform mounted between the 2 axles, and the rear of which has 1 more wheel than front, and wheel mounted on the front axle being arranged and track base mount and track in between those mounted on the rear axles। Okay, rear ये मतलब जो भी बैक मतलब पिछला चाक जो होता है, मतलब पिछला व्हील जो होता है, वो रेयर व्हील पे उस पर टाइप किया जाता है। एंड द प्रेशर इज अराउंड व्हाट, द स्मॉलर रोलर इज ऑर्डर ऑफ that is 250 kilonewton per meter in a heavier rollers, and the pressure ranges for from 400 to 10,000 that is kilonewton per meter square। Okay, so this is what the information about pneumatic rollers। इस तरह से pneumatic roller use किए जाते हैं। Like ship foot roller that is also recommended for compacting cohesive soils। Okay, cohesive soil but are not considered effective in a coarser grain or
cohesionless soil, that are useful or recommended for only cohesive soil, okay, and not recommended for any coarser or grain soil. The kneading action of the sheep foot roller result in better bound between the compacted layer compared to the other type of layer. इसमें क्या होता है, ये देखो ये जो sheep foot होता है, sheep foot roller, okay, तो इसमें क्या होता है, ये sheep foot roller ये क्या होता है, इस तरह से एक कॉम्पैक्ट जमीन में कॉम्पैक्ट करता है और जो दो लेयर उसको बाइंड करने का काम करता है. एंड द शिप पुट रोलर कंसिस्ट ऑफ hollow cylindrical steel drum on which the projecting feet are mounted. ये hollow cylindrical drum है और इसमें ये जो है ये ship feet, ओके, तो वो क्या है, उसको माउंटेड किए जाते हैं. The weight of the drum can be varied by filling it partly with the water or sand, and they mounted either singly or in a pair in a steel form in a स्टील फ्रेम. ओके, ये में भी सिंगल भी हो सकता है, जैसे कि अभी देखो ग्राउंड पे पिच बनाने के लिए जो भी रोलर वो प्लेन होते हैं, ओके, वो दैट इज नथिंग बट द फुट रोलर, वो क्या होते हैं, फुट रोलर होते हैं. पर अभी ये शिप फुट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये स्पाइक्स इसमें ऐड कर दिए, तो ये हो गया तुम्हारा शिप फिट हो गया. एंड द फुट प्रेशर इज रेंजेस फ्रॉम 800 to 3500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर इसमें क्या होता है, ऐड होता है. तो ये हो गए तुम्हारे न्यू रूलर्स. उसके बाद जाएंगे वाइब्रेटर्स, ओके, उसके बाद जाएंगे वाइब्रेटर्स. वाइब्रेटर्स क्या होता है, कंसिस्टिंग वाइब्रेटिंग यूनिट आइदर आउट ऑफ बैलेंस वेट टाइप और pulsating type, hydraulic type, mounted on a scale or plate or rulers, and the performance of compaction equipment depend upon the soil type, particle size, distribution and its water content. तो ये हो गए वाइब्रेटर्स. ओके, वाइब्रेटर्स सिंपली क्या होते हैं, देखो अभी वाइब्रेटर्स जैसे कि suppose you are doing a cement work, okay, and you need to maintain compaction, so simply इसमें क्या किया जाता है, वाइब्रेटर्स ऐड कर देते हैं. ओके, वाइब्रेटर यूज कर देते हैं कि यूनिट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, if you place that unit here, if you place that unit here, so that area, that soil get automatically compacted, okay, compact हो जाती है soil. तो ये वाइब्रेटर की वजह से होता है. ये different types of rollers और वाइब्रेटर pneumatic यूज की जाती है for the construction, for compaction of the soil. So these are the total about these are today's lecture, that is total about compaction of the soil particles or soil compaction of the soil, that is useful in different use phases. Okay, तो ये हो गया आपका compaction की वजह से. ठीक है, I will got this all information about this compaction